अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Today we shall learn about history. I am Rakesh Mishra, social science teacher. Today we shall learn about the rise of nationalism in Europe. Till mid-19th century, Europe was divided into various monarchical absolutist states with diverse people highlighting different cultures and languages. There was lack of collective identity or a common culture among the people of these absolutist states. A common allegiance to the monarch was the only binding force. However, in the 19th century, nationalism rose as a new force against autocratic system and propagated to the ideas of liberalism or equality. It brought about sweeping changes in political and mental world of Europe. Nation states emerged in place of multinational dynastic empires, but those who shared a common history. And France were the first countries in Europe to emerge as independent nation states. तो इस प्रकार nationalism is a political and socio-economic philosophy that promotes the interest of a nation as a whole. The concept of nationalism emerged in Europe during the 19th century. ये राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यूरोप में 19वीं सदी के दौरान आया। राष्ट्रवाद एक ऐसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक फिलॉसफी है जो किसी देश के हितों को बढ़ावा देता है। It marked the downfall of feudalism and the beginning of Renaissance, which literally means rebirth. राष्ट्रवाद के आने से सामंतवाद की समाप्ति हुई और पुनर्जागरण का समय शुरू हुआ। The feeling of nationalism was illustrated by a French artist named Frédéric Soyou. In 1848, he prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. यहाँ याद रखने की बात है कि फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में राष्ट्रवाद को समझने के लिए सबसे अच्छी व्याख्या 1848 में फ्रांसीसी चित्रकार और राष्ट्रवादी फ्रेडरिक सोरियू ने 4 अलग-अलग इवेंट को आधार बनाकर एक श्रृंखला बनाई, जिसे फ्रेडरिक ने कहा कि ये हमारे सपनों का संसार है, वो ऐसा संसार जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। और याद रखने योग्य बात यह है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार ने स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया, जिसमें महिला को एक स्वतंत्रता की प्रतिमा के रूप में दिखाया गया, जिसके एक हाथ में अनुरूपी मसाल है तो दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, और मूर्ति के नीचे जमीन पर निरंकुश राजशाही का अवशेष बिखरा पड़ा है। तो इस प्रकार इस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे कि ये राष्ट्रवाद यूरोप में एक ऐसी शक्ति बनकर सामने आया जिसने यूरोपियन राष्ट्रों के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। और इन्हीं परिवर्तनों से यूरोप में जो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य था, उस साम्राज्य के जगह पर राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट का जन्म हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल शासकों बल्कि उसके ज्यादातर नागरिकों में एक कॉमन आइडेंटिटी, एक संयुक्त पहचान का भाव आया और एक संयुक्त इतिहास और एक विरासत की भावना आई। तो ये चैप्टर उन सारे
पर फोकस करेगा, जिसके अंतर्गत 19th सेंचुरी के यूरोप में राष्ट्र राज्य मतलब नेशन स्टेट और नेशनलिज्म अस्तित्व में आया। The painting depicted his dream of a world free of the absolutist institutions and the establishment of democratic and social republics. It also instituted the Statue of Liberty, holding a torch of enlightenment and the Charter of the Rights of Man. Concept of liberty, equality, fraternity, and nationalism dominated the social and political scenes of Europe in the 19th century. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. तो पहला जो राष्ट्रवाद की संपूर्ण अभिव्यक्ति जो है वो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के दौरान आई 1789 में। When revolted against the despotic rule of Louis XVI. The results of the French Revolution, जो रिजल्ट था कि the revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. जो राजा के हाथ में जो संप्रभुता थी, उस संप्रभुता का हस्तांतरण फ्रांस के नागरिकों में हुआ। सेकेंड, equal rights under a constitution were guaranteed. The States General or the French Parliament was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. Next point, many measures and directives were introduced by French revolutionaries to create a sense of collective identity. लोगों में सामूहिक पहचान की भावना आई। Uniform laws for all citizens were introduced by a centralized administrative system. Regional dialects were discouraged and French became the common language of the nation. तो इस प्रकार with the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. French armies moved into Holland, Belgium, Switzerland, Italy in the 1790. 1790 में फ्रांस की सेना जब हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली गई, with a promise of liberating the people from their despotic rules, वहां के लोगों ने खुले हाथों से फ्रांस की सेना का स्वागत किया, क्योंकि वहां के लोगों को विश्वास था कि फ्रांस की सेना हमारे यहाँ भी अंकुश राज सत्ता से मुक्ति दिलाने आई है। तो इस प्रकार it paved the way for the achievement of bigger goals of national identity and national pride. तो इस प्रकार फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक ऐसा रास्ता प्रिपेयर किया, रास्ते से लोगों में राष्ट्रीय पहचान की भावना आई, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना आई, which can actually be called as nationalism. तो इस प्रकार हम लोगों ने आज नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में नेशनलिज्म में सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने क्लास 9 में ही विस्तार से पढ़ लिया। तो हम लोगों ने आज पढ़ा राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है, अंतर्गत वे खुद को एक कॉमन हिस्ट्री यानी संयुक्त इतिहास, ट्रेडिशन, परंपरा, लैंग्वेज, भाषा और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं और इन्हीं बंधनों के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्हें आत्मनिर्णय के आधार पर अपने संप्रभु राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र की स्थापना करने का आधार है। 18वीं सदी में बहुत सारे यूरोप में देश थे, जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि। ये देश वैसे रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन राष्ट्रों को देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था।
तो राष्ट्रवाद और मॉडर्न स्टेट के हिस्ट्री के बीच एक संरचनागत संबंध है। तो 16वीं और 17वीं सदी के आसपास यूरोप में मॉडर्न स्टेट का उदय हुआ, जिसने राष्ट्रवाद के जन्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रकार हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के संबंध में आज शुरू किया। अगले दिन पीरियड में हम लोग नेपोलियन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और नेपोलियन के बारे में पढ़ने के बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ेंगे और 1688 से लेकर 1801 के बीच ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के रूप में पढ़ेंगे और लास्ट में 1830 से 1848 के बीच बाल्कन राष्ट्रों के बीच जो राष्ट्रवाद का कैसे संचार हुआ वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पीरियड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में